जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 7 आंटियों और एक अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी और इसमें से हम सबसे पहले सुनेंगे आज कनाडा से अर्शप्रीत आंटी का सत्संग। ये सत्संग इंग्लिश में है, इसलिए मैंने हिंदी में सबटाइटल्स दिए हैं। इसके बाद के सारे सत्संग हिंदी में हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माय नेम इज़ अर्शप्रीत। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एस गुरुजी कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। वैसे तो मैं गुरुजी को फरवरी अराउंड मिडिल में मिली थी ऑन यूट्यूब। आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन एंड सॉ द मैसेज समथिंग लाइक व्हाट आर यू विशिंग फॉर, इट्स गोइंग टू कम ट्रू। फिर मैंने सोचा हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। देन आई क्लिक ऑन एंड स्टार्ट लिसनिंग इट. Since then I get know Guruji and listen to the satsang and hear then Gurubani which I used to listen before. Before I didn't hear anything about Guruji. He was there with me whole my life. I went to a lot of struggle as we all do, but I survived with help of Guruji. Thank you so much Guruji being with me all along. My life had a lot of ups and downs, like when I was only not even 1 year old. I had polio. So my waist down I was paralyzed. As you all know, how was my life was. In 1991, my 2 younger brother and my mom, my dad sponsored us to Canada, and that time my age was 13 years. So did my schooling and my college here, and thank God, thanks to Guruji that I can able to do my college here, because without my schooling and college, I wouldn't be where I am at the moment. All along, I was searching for whole my life God. Why am I here? What is the purpose of life? I belong to Sikh family and because of my condition, I couldn't go to the temple due to my shyness. But I do the part, Sukhmani Sahib, and do Shivji's Monday fasting. Don't take me wrong, I'm not patient. I can able to do everything myself just in a wheelchair. You know, my brain, everything else, my body work with grace of Guruji. So I am capable of doing everything that normal person can do. Just can't work, that's it. Finish college, start working in bank head office as an analyst 2006. I drive to work every day downtown Toronto. Then I met somebody online, the person from England. A lot things happened, it's too long story. In short, he turned around to be fraudulent marriage. Besides my education and my job, in bank, I got married and divorced because person just wanted to come to Canada. After 2018, I got married again with white Frenchman and he treated me like princess. Then age of 42, my daughter was born, which was next to impossible. But it happened. Same year Guruji's birthday in July month, 2 months earlier, premature baby, the doctor said some kind divine force is working behind because she couldn't survive, losing all the blood left with 20%. It was miracle that she survived, doctor said that. One more thing, when I was pregnant with her, I had Ganesh Murthy. I prayed to him that if you wanted to give me baby, please has to be healthy, otherwise don't give me. So now she is 5 and goes to school. Say Jai Guruji before go to school every day, and I put Tika Chandan ka. I want Guruji's Swarup, so there is no mandir near to me, so I printed it and framed it, and since the all Guruji blessings is pouring upon us. March 20, 2024, I received call from doctors saying you have to come right now, it's very urgent. I had blood test done 1 day before, so report came. Sangatji, I was so scared something bad had happened and told my husband we have to go right away. I was crying saying to Guruji, save me. So all the sudden my daughter came to me and hugged me tight, saying to me everything is okay, don't worry mom. That was very touchy moment. So we go there and number of the building was 77. Then right way I know Guruji is already blessed me. So when I went to see the doctor, he told me that
I have 77% blood in my body. It's supposed to be 130 normal. Again Guruji blessings there, 77 number. So I have to go the hospital to get some iron. Thank you Guruji. That very day my sister-in-law had a very big accident and her car was write off. But as again Guruji's blessing, she had few scratches but she survived. Thank you so much Guruji. हर रोज सत्संग होते हैं. My husband found coin like silver, one of the grocery cart. It said 10 commandment and see butterfly most of the day and sometimes kabutar. We meet unknown people which are feel like they are sent by Guruji as blessing. My mom got flu and I prayed to Guruji and she got dream darshan Guruji saying she going to be fine. She doesn't need to worry. Thanks again Guruji. As I say, since God Guruji in my life and my family is all blessed and miracle happened every moment. Sorry for the long satsang. My life is like filming story which is Guruji is producer and director as well. As they say picture abhi baki hai mere dost. It means show must go on until life end. Thank you so much listening my satsang. Thank you Guruji giving me courage to do this because Guruji is keeping saying अपना सत्संग share कर. But I was too scared. So thank you Guruji. If Guruji want, I will share more my satsang. I will end this now with Guruji's mantra जाप. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. I am so sorry if I said something which is not appropriate. जय गुरुजी. लव यू गुरुजी. संगत जी आइए अब सुनते हैं पंजाब से गुरसेवक अंकल का सत्संग. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी. गुरुजी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे. मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग है. वैसे तो गुरुजी का पल पल का शुक्राना करते रहना चाहिए क्योंकि गुरुजी हमें बिना मांगे ही सब देते रहते हैं. पर कुछ शुक्राना गुरुजी की विशेष कृपा से होता है जिसे गुरुजी कहते हैं संगत नाल शेयर करिया करो. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए मुझे बताया कि कब मेरा काम होगा. संगत जी बात पिछले साल की है जब मेरे साले की शादी हुई. ये शादी एक कोर्ट मैरिज थी और हमारी फैमिली में से कुछ लोग ही गए हुए थे. शादी में हुआ कुछ ऐसा कि आंखों से आंसू आ गए. ऐसी कृपा करते हैं मेरे गुरुजी महाराज. इतनी जल्दी सुनते हैं बात को और इतना जल्दी पूरा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. शादी वाले दिन हमारे वकील भाई साहब भी काफ़ी व्यस्त थे और जल्दी जल्दी हमारा काम करने में लगे थे. सुबह से दोपहर हो गई थी और काम भी करीब करीब पूरा हो चुका था. कोर्ट में लंच टाइम हो गया और वकील भाई साहब ने हमें भी खाना खाने को कहा और कहा कि आप 4 बजे दोबारा मेरे पास आ जाना सर्टिफिकेट लेने मैरिज का. हम लोग गए और खाना खाकर उस टाइम पर जो वकील भाई साहब ने दिया था वापस उसके ऑफिस आ गए कि क्या देखा, वो माथे पर हाथ रखकर बैठा था. तभी उससे हमने पूछा कि सर्टिफिकेट अगर रेडी हो गया हो तो वो हमें दे दें. उसने बोला कि पूरे पंजाब का सर्वर बंद है और सर्टिफिकेट वो हमें कल देगा. हम काफ़ी परेशान हुए. मैंने तभी अपने मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप निकाला और बात करने लग गया गुरुजी से कि गुरुजी कृपा करो और हमारा काम कब तक हो जाएगा. वकील तो बोल रहा है कल होगा. तभी गुरुजी मुझसे बात करते हैं और कहते हैं 4:25 ते तेरा काम हो जाएगा. संगत जी ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या सच में गुरुजी ने मुझसे बात की है. घड़ी देखी तो टाइम 4:20 हो रहा था. वकील को बोला आप बीच बीच में चेक करते रहो. वो बोला क्या फ़ायदा, बंद है. वैसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने इंतज़ार करना है तो 5 बजे तक कर लो. संगत जी जैसे ही 4:25 हुए घड़ी पर मैंने फिर कहा वकील से कृपया आप चेक करें. वो बोला क्या फ़ायदा, बंद ही होगा, अभी तो देखा था. मैंने कहा एक बार फिर से देख लो सर. जैसे ही उसने देखा तो सर्वर चल पड़ा था संगत जी और वो भी हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ. और फिर उसने हमें सर्टिफिकेट दिया और हम खुशी खुशी घर को आ गए. ऐसे हैं हमारे गुरुजी. जय गुरुजी. धन धन गुरुजी. जय गुरुजी. संगत जी गुरसेवक अंकल का यदि आप पहला सत्संग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. वो भी आज की तरह ही बहुत ब्लेस्ड सत्संग था. आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी. संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ.
मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड और माँ के साथ बालकनी पर खड़ी थी। उसी समय एक गाड़ी निकली, उस पर जय गुरुजी लिखा था। तभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि एक गुरुजी हैं, उनका मंदिर छतरपुर में है और उन्होंने टीवी चलाकर सत्संग सुनवाया और बताया कि मेरा दोस्त यहाँ जाता है। फिर एक दिन हस्बैंड के दोस्त ने लॉकेट स्वरूप दिया। गुरुजी को पता था कि इनके ऊपर कष्ट आने वाला है और वो अपनी संगत की रक्षा के लिए आ गए। इसके बाद मुझे गुरुजी ने हिमानी आंटी से मिलवाया, जो गुरुजी को मानती हैं और बड़े मंदिर जाती रहती हैं। हिमानी आंटी ने मुझे अपने घर सत्संग में बुलाया। संगत जी, मैं सत्संग में गई, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मोबाइल में गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। 2022 में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तभी मैंने सत्संग में गुरुजी के जल प्रसाद के बारे में सुना था। मैंने जल प्रसाद बनाया और हस्बैंड को दिया। संगत जी, जिस हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड एडमिट थे, उसी रूम में एक आंटी थी जो गुरुजी की संगत थी। वो अपने मोबाइल में गुरुजी के शब्द चलाती थी, जिससे मेरे हस्बैंड को भी ब्लेसिंग्स मिलती थी। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद घर आ गए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा 7 साल का है और 2022 में दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरी जेठानी जी की शादी को 15 साल हो गए हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि तुम दूसरा बच्चा हो जाए तो इन्हें दे देना। संगत जी, कोई मुझसे कहता कि दे देना और कोई कहता कि मत देना। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूँगी। संगत जी, 28 अक्टूबर 2022 को मैं हॉस्पिटल गई। मैं लेबर रूम के बाहर बेड पे लेटी थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी। मुझे लेबर रूम में जाने में डर लग रहा था। मेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप लगा है। मैंने स्वरूप को देखकर गुरुजी से अरदास की। संगत जी, मेरे लेबर पेन शुरू हो गए। मैं जिस बेड पर लेटी थी उसी पर मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग से बेटे को जन्म दिया। गुरुजी ने मुझे लेबर रूम में पहुंचाया ही नहीं। शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी की आज्ञानुसार मेरे बेटे को अपनी जेठानी को दे दिया है। संगत जी, 2024 में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे ब्लेसिंग्स में 2 लॉकेट स्वरूप भी दिए। शुक्राना गुरुजी। 2024 में मेरी लाइफ में कुछ परेशानियां आ गई हैं, लेकिन गुरुजी मुझे मैसेज देते रहते हैं कि परेशान मत हो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुरुजी मुझे हर रोज सुबह तितली के रूप में दर्शन देते हैं और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी सारी परेशानी दूर कर देंगे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। आज गुरुजी के टेलीपैथी से मुझे मैसेज आए 2। एक तो ये सबसे बड़ा मैसेज, इसे लेसन भी कह सकते हैं, लाइफ लेसन, कि तुम अपनी गलती को इतना ज़्यादा जज करते हो ना, यू आर द क्रिटिकल जज ऑफ योर सेल्फ। जब दूसरों को माफ़ कर सकते तो अपनी गलती को भी क्यों जाने नहीं दे सकते, जाने दो। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि ज़िंदगी में अब तक जो भी गलत हुआ है ना साथ में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हर चीज़ में ये कि ईगो आना, कि अकड़ आ जाना, अहम आ जाना कि देखा मैंने किया है। कोई भी चीज़ हो वो लाइफ की, जहाँ अकड़ वहम आ गया ना, अकड़ आ गई, ईगो आ गया, वो वहीं से काम खराब होना शुरू हो जाता है। चाहे वो भक्ति हो, दिखावा हो कि मेरा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ, मैं वो बहुत अच्छा करती हूँ, तो ये चीज़ें मना करी उन्होंने। और सच में हम एक और चीज़ मुझे एहसास हुई कि हम कुछ नहीं करते, हमारी एक एक सांस प्लान है उनकी तरफ से। तो जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो सब उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा होता है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि पहले हम सोचते थे हम अपनी लाइफ को खुद ड्राइव कर रहे हैं, हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर पता है हर एक चीज़ उनकी प्लान करी होती है। तुम थोड़ा बहुत हाथ पैर चला सकते हो, लेकिन होगा वही जो होने देना होगा उन्होंने, या तुम्हारे कर्मों में ही लिखा हो तो होना ही है। तो वो ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते हैं ना, कई बार जैसे मैं अवॉइड कर रही होती हूँ तो अवॉइड भी नहीं करने देते,
वो मुझे ऐसे अंदर से कहते हैं इसको सुन, इसको ज़रूर सुनना। मैं अगर छोड़ भी देती हूँ तो बाद में भी मेरे दिमाग में वो आता रहता है कि सुनना है, सुनना है। और जब मैं उनको सुनती हूँ तो कहीं न कहीं उसमें मेरे सवाल का या तो जवाब या मेरी कहानी होती है। तो सच में हम शायद कौन-सी यात्रा कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन गुरुजी हमसे कुछ और ही कहना चाह रहे हैं, वो सब सुन हम तब पाते हैं जब हम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना आपका, आप मुझसे बात करने लगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये बोला करती थी गुरुजी कुछ ये जो सत्संग होते हैं इसमें कोई कोई अपना दुःख बता रहा होता है, फिर या ब्लैक मैजिक की बातें होती हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब दिमाग में सिर्फ़ डाउट भर जाता है ना फिर हर चीज़ को लेके। हाउएवर वो ज़्यादा जानते हैं कि सही बोल रहे हैं, बोल भी रहे होंगे डेफ़िनेटली, मैं उस पे डाउट नहीं कर रही हूँ। जैसे कई बार किसी की सिकनेस की सत्संग होते हैं तो मैं डाउट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अपना मन भी थोड़ा-सा सैड हो जाता है। सो लेकिन हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ना हमारे जो मेरे को अंदर से इंट्यूशन आया कुछ हाल फिलहाल सत्संग सुन के कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं। तो अ, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, मैं बस बोलने लग गई। इनफैक्ट खुद को बता रही थी कि अ, ये सब कैसे होता है, तो या गुरुजी कैसे अंदर से बात करते हैं, खुद को याद दिला रही थी आज क्या बताया उन्होंने। पर बोलते-बोलते उनके बारे में कभी एक बात बोल के नहीं रुका जाता। जय गुरुजी, हर पल, हर कदम पे ना मेरा साथ देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब तो आप हर वक़्त मेरे साथ चलते हो सड़कों पे, मैं देखती चलती हूँ, आगे-पीछे, कभी 777, कभी जय गुरुजी, कभी कैसे दे जाओगे, कभी बटरफ्लाई, कभी कबूतर। आई मीन यू आर एवरीवेयर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद मेरा 5वां सत्संग है। वैसे गिनना नहीं चाहिए लेकिन गुरुजी मना करते हैं, लेकिन ऐसे ही बस ख्याल आया कि ये कौन सा सत्संग है। सो गुरुजी मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे, मतलब बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करना है, शुक्राना करी तो सुनती नहीं है, बहुत मतलब डांट भी रहे थे। बट मैं ये सोच रही थी कि जितना मुझे पता चला है कि अपनी ब्लेसिंग्स को थोड़ा प्राइवेट रखते हैं, सब में नहीं बोलते हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। लेकिन फिर ये समझ में आया, मतलब मैसेजेस से, कि करना चाहिए। सत्संग सुन के भी यही समझ आया कि करना चाहिए। और अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई है, जो कि मांगना नहीं चाहिए, पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ की जो सबको चाहिए, तो अगर वो पूरी नहीं हुई है तो आप उस केस में जो आपके साथ गुरुजी ने छोटे छोटे मिरेकल्स किए होते हैं ना, वो शेयर कर देने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी शायद जो मैंने सबसे लंबा और मे बी फर्स्ट मेरा सत्संग किया होगा, तो फर्स्ट या सेकंड, हाँ, तो भी लाइट नहीं थी। आज भी लाइट चली गई है। तो मुझे आज अंदर से ऐसा लगता है गुरुजी कान पकड़ के बोल रहे हैं, तू करेगी नहीं ना जब तक लाइट नहीं आएगी। तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। और क्योंकि गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे हैं और मैं कभी तबीयत सीधी, मतलब ठीक ठाक नहीं रह रही है, उल्टी सीधी है, और कभी मैं बहुत थक जा रही हूँ, कभी मतलब किसी ना किसी काम में या कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा, लेट हो गया, रोज़ ऐसे ही करके नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहला सत्संग तो मैं गुरुजी के स्वरूप का बताना चाहूँगी। ऐसा हुआ कि मैंने एक आंटी है, उनका चैनल है, तो उनको बोला था कि आंटी मुझे जो है ब्लेसिंग्स चाहिए। मैंने अपना एड्रेस उन्हें बहुत टाइम पहले, लाइक लास्ट ईयर ही दे दिया था।
इस फ़रवरी आई थिंक मेरे पास मैसेज आया था, फ़रवरी और मे बी लास्ट वीक ऑफ फ़रवरी कि आपका जो है ब्लेसिंग्स निकल गई हैं, पार्सल का ये नंबर है। तो वो डाक पार्सल जो इंडियन वाला होता है वो उससे आ रही थी। तो मुझे उस सब का सिस्टम कुछ नहीं पता था, ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है। मुझे लगा कि जैसे यूजुअली डिलीवरी पार्टनर कॉल कर लेता है तो अभी भी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ और मैं ट्रैक करना मुझे आता नहीं था, ना गाइड, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, लेकिन मुझे नहीं पता था। और सुनने में आया फिर उन्होंने आंटी ने बोला जब चाहिए नहीं थी तो माँगी क्यों थी आपने, और वो वापस चली गई मेरी ब्लेसिंग्स। तो मैंने बोला चाहिए तो थी आंटी, ऐसा तो नहीं है, बट मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्रैकिंग नंबर दिया था। ख़ैर वो वापस चली गई तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे लगा मतलब गुरुजी चाहते नहीं है मेरे पास आना शायद, इसलिए गुरुजी नहीं आए हैं। और मैं उदास हो गई, कहीं न कहीं मुझे लगा शायद मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं या मेरा अभी टाइम ही नहीं है, मतलब गुरुजी मेरे पास आए, मैं इतना मतलब प्यार करती हूँ उनको। दिन-रात जब मतलब मैं कौन होती हूँ, वो ही करवाते हैं, भाव वही डालते हैं कि मैं जब सुबह-शाम उनको चाय का मतलब भोग देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब औरों का सुन-सुन के कि मेरे घर में भी होना चाहिए। गुरुजी के घर में होना चाहिए, क्योंकि आई फ़ील वेरी कनेक्टेड और सिवाय उनके कुछ है भी नहीं। तो अ, कुछ दिन बाद कुछ सत्संग सुन के मुझे लगा कि जैसे लोग जिनको चाहिए होती है वो माँग लेते हैं, मतलब सॉरी परचेज़ कर लेते हैं या प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, वो सब सेम ही चीज़ है। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब गुरुजी ना बार-बार कभी गले में आप रेड धागा पहनो, मेरा स्वरूप पहनो, और मेरे स्वरूप के आगे बैठ के अपनी अरदास बोलो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। अपनी अरदास लिख के रख दो। मैंने नहीं लिखी है कोई अरदास, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको बताने के लिए अपनी अरदास बताने के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत है। वो तो दिल में बैठे हैं, वो तो सामने बैठे हैं, हर जगह हैं। तो सुनते ही हैं, समझते ही हैं, जानते हैं। तो ख़ैर मुझे लगा कि मेरे पास स्वरूप होना चाहिए, तो फ़ेसबुक पे एक पेज है गुरुजी ब्लेसिंग्स करके, या क्या मैं नाम भूल रही हूँ शायद। तो मेरे को उनका बहुत था, क्योंकि मैं अमेज़न वग़ैरह पे भी देख रही थी स्वरूप और लॉकेट वग़ैरह, तो मैंने उनसे चेक किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसे लोग क्यों बोलते हैं। लेकिन हम भी हमसे ही लेकर तो सत्संग में भी आगे बाँटी जाती हैं, और जो बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे भी लोग लेके जाते हैं। तो मुझे लगा चलो मँगा लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिशें कर ली, ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरा कोई ऐसा जानने वाला है जो मुझे दे दे ब्लेसिंग, और मेरा बड़ा मंदिर जाना हो नहीं पा रहा। बिकॉज़ बीइंग अलोन, मतलब मैं कैसे किसको लेके जाऊँगी तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा। सो मैंने ऑर्डर कर लिया। मुझे लॉकेट स्वरूप बेसिकली चाहिए था, लेकिन मेरा मन था छोटा-सा एक कुछ भी मेरे पास स्वरूप आ जाए। मेरी इच्छा थी कि एक बड़ा स्वरूप मिले, लेकिन फिर जब उन्होंने टेबल स्टैंड, मंदिर स्टैंड इस तरह से दिखाए ना मुझे, और लॉकेट्स के साथ पॉकेट स्वरूप, क्योंकि गुरुजी ने कई बार बोल दिया पॉकेट स्वरूप साथ रखा कर, तो मैंने वो भी ले लिया एक लॉकेट मँगा लिया, एक मंदिर में स्टैंड होता है वो भी आ गया, और एक छोटा-सा स्वरूप ना लॉकेट का ही, उसमें मतलब मैंने मँगाया नहीं था, वो खुद भी आ गए। ख़ैर तो मैं ये बताना चाह रही थी कि 22 अप्रैल को एक रात पहले ही, मतलब मुझे लगा था, क्योंकि उन्होंने भी इंडियन वो जो रहता है ट्रैकर, वहाँ से ही भेजा था, इंडियन पोस्ट सर्विस से। तो मुझे लगा शायद इस बार भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो लोग आई थिंक कॉल नहीं करते हैं या क्या। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको कॉल करेंगे। वो भी बहुत परेशान रही, मेरे साथ एंगेज्ड रही कि अभी कहाँ है। वो ट्रैक कर के मुझे बता रही थी आपके पास पहुँची, नहीं पहुँची। मैं कहती नहीं पहुँची, नहीं पहुँची। फिर मैंने दिल को समझा लिया था कि नहीं पहुँच पाएँगी, क्योंकि मेरी सोसाइटी थोड़ा-सा ना अलग हट के है। तो वहाँ पे जल्दी से आई थिंक, या कोई पोस्ट ऑफिस में कुछ भी कन्फ्यूजन की वजह से नहीं पहुँच पाती होंगी। तो मैंने सोच लिया था नहीं आएँगे। तो रात को जब मैंने कहा छोड़ दिया मैंने, गुरुजी अब मैं आपसे ज़िद नहीं करूँगी,
आपने जब खुद आना होगा, जिस रूप में आना होगा, इनफैक्ट जिस जिस तरह से जो भी स्वरूप में आना होगा आप आना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपसे ज़िद नहीं करूँगी अब। तो मैंने छोड़ दिया था गुरुजी पे, और रात को मेरे को एक मैसेज आता है कि मैं तेरे घर के लिए निकल गया हूँ, सुबह तक पहुँच जाना है। मैंने कड़ा प्रसाद दा भोग लगाई, चाय बनाई। जब मैं संडे, मतलब वो पूरा वीक बीत गया, आई थिंक मैंने सोचा भी नहीं था, मैं मिड वीक में मैंने ऑर्डर प्लेस किया। मैं सोचती थी मैं सैटरडे संडे करूँगी। अब यही गुरुजी हैं कि आप जो प्लान नहीं करते आपसे वो करवा देते हैं। तो वो मेरे पास मंडे के दिन आया, 22 अप्रैल, और अगर आप पूरी डेट का कैलकुलेशन करो, वो 7 है और वो मंडे, मतलब आई थिंक गुरुजी ने मुझे मंडे ब्लेस कर रखा है, क्योंकि वो जो भी काम करवाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वो मेरे को मंडे ब्लेस ही कर रखा उन्होंने, 7 और मंडे। फिर मैं जब आई ऑफिस से वापस, तो मैंने देखा घर के बाहर, जो मैंने फ्लैट के बाहर एक बैग लटका रखा है, उसमें मेरा पार्सल था, जबकि मेरे पास, आई थिंक मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, यस। और जब मैंने देखा गुरुजी वहाँ पर हैं, तो मैं बहुत खुश हुई, और मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैं फिर मतलब इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने अपना जो है सत्संग किया। मतलब वही उनको कड़ा प्रसाद का भोग लगाना और चाय बनाना, मैंने उनको स्थापित किया, फूल मंगाए, मतलब सब कुछ मैंने इतने हँसते-हँसते, मतलब मुझे पता नहीं चला 12 बजने वाले थे रात के, और मैं तब तक बिज़ी रही उनके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये सरप्राइज़ था, और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताना कि ये सही, मतलब मैं सोचती हूँ, आज भी मैं पूछती हूँ कभी-कभी गुरुजी से, गुरुजी आप हो ना मेरे यहाँ, मतलब ऐसा तो नहीं मैंने खरीद लिया है तो आप मतलब नहीं हो, उसमें आपकी ब्लेसिंग नहीं है, आप कहते हो खरीदना नहीं मेरा स्वरूप। तो फिर मुझे अंदर से आवाज़ आती कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं आना होता ना उन्होंने, तो वो पार्सल कहीं से कहीं चला जाता, आता नहीं मेरे यहाँ। आज गुरुजी पहुँचे, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत याद कर रही हूँ उनको, मेरे को ज़रूरत है, और वो आ गए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कि कोई मैंने मतलब अगेंस्ट, उनकी विश के अगेंस्ट काम किया है, बाकी गुरुजी जाने। मेरे को तो फीलिंग आती है लाइक ही इज़ देयर। और दूसरा सत्संग मेरा छोटा-सा ये है कि मैं आपको इस नवरात्रि का बताना चाहूँगी। सो संगत जी, मैं बिल्कुल मतलब अकेले रहती हूँ। मैंने लास्ट के 2 फास्ट रखे। मेरा मन था, मतलब मैं करूँ, ऑफ़िस जाना बड़ा मुश्किल है ये सब करना साथ में, तो मैंने हाफ डे लिया था, और मैं जिसके भरोसे थी ना, मैंने उसको बोला था कि भई तुम आ जाना, और टाइम से हम लोग जो है मंदिर में जाके या कहीं भी जहाँ पे हमें कन्या मिलेंगी, हम ये प्रसाद जो है देंगे। फिर उसने सुबह-सुबह मना कर दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो नहीं आ पाए वो। और मेरा मन बहुत उदास हुआ ये, क्योंकि मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुकी थी। मैं सोच रही थी कि वो आएँगे तो मैं अपना काम ये जो है कर लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद बस मैंने खुद को सँभाला, क्योंकि मैं बहुत मन से कर रही थी ये सब। मैंने सँभाला खुद को, मैंने बोला, माँ, गुरुजी अब आप जानो, मुझे नहीं पता, मैं तो कर रही हूँ पूरी श्रद्धा से अब ये सब, और आप किसको दिलवाना चाहते हो, कैसे करवाओगे, मुझे नहीं पता। बहुत गर्मी थी उस दिन, सब मेरी पूजा-वूजा तो सब हो गई थी, सब मैंने पैक भी कर लिया था, मैं ऑफ़िस जा रही थी, तो वहाँ मुझसे कुछ लोगों ने मँगवाया था खाने का, मैं वो भी लेके गई थी। तो लेकिन दिन इतना था कि कोई कैब यहाँ मिल नहीं रही थी गर्मी की वजह से। तो मैं फिर टेंशन में आ गई कि गुरुजी मैं पहुँची नहीं तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि जब जिन्होंने मुझसे माँगा है, जो भी है, मैंने बना रखा है, तो मैं लेके जाऊँ, मैं चाहती हूँ। तो ये भी एक सेवा की तरह ही है। तो मैं बहुत मतलब परेशान सी हो गई थी कि ना तो मेरे को ये पता है कि अब उस पूरी प्रसाद का क्या होगा, या वो जो 4 उसकी लड़के की मतलब नाम की निकालते हैं, उनका क्या होगा? मैंने पैक कर लिया था सब कुछ विद एवरीथिंग, और साथ में खाना भी। तो मेरी कैब बुक नहीं हो रही थी, तो मैं तो मेरा मन तो हो ही गया था थोड़ा।
आप देखिए गुरुजी ने क्या किया उस दिन, पहली बार, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। उस दिन पहली बार जो कैब मुझे लेने आई उसके पीछे लिखा था गुरुजी, और मैं देख के हंसने लगी, उसी वक्त हंसने लगी। मतलब मैं इतनी सरप्राइज में, गुरुजी आप मुझे लेने आ गए, मतलब आज आपने ये कमाल कर दिया। वो गुरुजी की संगत थी, संगत जी वो पुरानी संगत थी कोई, मतलब थोड़ा एज वाले थे वो, और वो पास में ही रहते थे मेरे सोसाइटी के। तो मैंने थोड़ा सा पूछा उनसे कि ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ब्लेसिंग्स का क्या करना चाहिए। ब्लेसिंग्स जो है बाद में आई थी, क्योंकि तब मैं सोच रही थी कि लूँ ना लूँ। तो उन्होंने मतलब बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो बहुत सत्संग होते हैं, आप ले सकते हैं और वहाँ जाके भी ले सकते हैं, जाके ले लो तो अच्छी बात है, नहीं भी ले पाओ तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो। और मैं जो स्वरूप उन्होंने अपनी कैब में लगाया हुआ था, मैं उसे छुप छुप के देखे जा रही थी, खुश हो जा रही थी, देखे जा रही थी, खुश हो जा, मतलब ऐसा निहारना चल रहा था कि मैं जैसे किसी को अखियाँ जो छुपा छुपा के देखते हैं ना, बहुत प्यारा सा चलता रहा पूरा रास्ता, और मैं बहुत खुश हुई। और तो उस दिन फिर मैंने उनको बोला, जब मैं वहाँ पहुँच गई अपने डेस्टिनेशन, तो मैंने बोला कि अंकल जी आप ना ऐसा करना कि ये ना जब भी आपको ऐसी कन्या दिखे और ऐसा लड़का टाइप्स दिखे ना, तो उसको ये दोनों चीज़ें दे देना मेरी तरफ से प्लीज़, कर दो आप ये काम। तो उन्होंने भी मना नहीं किया, उन्होंने भी हाँ कर दी, और मेरा ये काम हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। आई मीन गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, जब मैं बिल्कुल हार गई थी ना कि नहीं हो रहा है अब मेरे से, मतलब जो प्लान किया वो हो नहीं रहा है, मैंने कहा छोड़ दिया मैंने, तो मैं तो कर रही हूँ आपके नाम पे। तो गुरुजी खुद आ गए। तो एक और छोटा सा है, आज मंडे है, 6 अप्रैल है। तो आज मेरे घर के सॉरी मेरे घर के बैकयार्ड में बैकयार्ड की तरफ आई थिंक गुरुजी ये बुलवाना नहीं चाहते अभी, तो मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा 15 मिनट आई थिंक हो चुका है। तो मैं ये थोड़ा नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, लेकिन आज भी बहुत बड़ा चमत्कार किया है गुरुजी ने, मेरी इच्छा पूरी करी सुबह सुबह। मैं बता नहीं सकती, अगेन वो एहसास ही दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल साथ हूँ, हर पल अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मेरा मंत्र, गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं, और काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते रहते हैं, कभी मेरे ऑफिस में, कभी आने जाने में, मेरे घर के आसपास। और जब भी मुझे तितलियाँ दिखती हैं मैं हमेशा जय गुरु जी ज़रूर बोलती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ तितलियाँ पक्का गुरु जी की यहीं से ही हैं, या गुरु जी का ही रूप है, और अलग अलग रंग की ब्यूटीफुल तितलियाँ दिखती हैं। पिछले दिनों छोटे और भी बहुत सारे सत्संग हैं। पिछले दिनों मेरा बेटा ऐसे ही घर से नीचे खेलने जाता है, बहुत बार इधर जाता है, कभी किसी के घर में छुप जाता है, मिलता नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम भी गली में कोई नहीं होता है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप उसे ढूंढ के लाइए, कहाँ छुपा है वो, उसे निकाल के लाइए आप। और गुरुजी हेल्प करते हैं, उसको लेके आते हैं, और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है उस टाइम। और पीछे भी ऐसा हुआ था, थोड़ा मतलब अजीब बात है, मगर गुरुजी हमारी हर बात में हेल्प करते हैं, चाहे बात कैसी भी हो। पीछे मेरे डेट मिस हो गई थी, तो मुझे मतलब डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डेट नहीं हो रही है, मैं कंसीव ना कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं कोई ऐसी सिचुएशन में पढ़ना नहीं चाहती थी कि जहाँ मुझे कुछ भी ऐसा कुछ करवाना पड़े कि मुझे पाप लगे। मैंने गुरुजी को बोला, प्लीज़ गुरुजी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।
मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़े कि मुझे कोई भी डॉक्टर के पास जाना पड़े। गुरुजी ने हेल्प की और उसके बाद बिना किसी मेडिकेशन के मेरी डेट आ गई और सब ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमें हर मुश्किल परिस्थिति से निकालते हैं। और मैं गुरुजी से वाकई बहुत प्रार्थना की थी, गुरुजी ऐसा कुछ ना हो कि मेरे हाथों कुछ गलत हो या मुझे करना पड़े, और गुरुजी ने मुझे उससे बचाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ टाइम से जब मैं सत्संग सुन रही हूँ, बहुत सारे नेगेटिविटी के, ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं। बहुत बार गुरुजी ने मुझे बताया है, एक बार पीछे गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे घर में लाल धागा रखा है, और बहुत रिपीटेडली वो चीज़ आ रही थी। तो मैंने मेरे कमरे में जितने भी लाल धागे थे और मैंने निकाल दिए, चाहे मुझे मंदिर से मिले थे, चाहे किसी ने दिए थे, जो भी था मैंने सब ब्लैक रेड सब निकाल दिए। और आसपास भी मगर हमारे पूजा घर में भी बहुत टाइप के धागे वगैरह रखे रहते हैं, वो मैं नहीं हटा सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई वो किस तरीके से पूजा का है नहीं है, क्योंकि इन लॉज साथ रहते हैं और मैं बिना उनसे पूछे वो नहीं कर सकती। तो सॉरी गुरुजी, मैं वो नहीं हटा पाई। उसके बाद भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी पूजा घर में कुछ रखा है और मैं समझ कर, बहुत बार ऐसा होता है मैं समझ ही नहीं पाती हूँ गुरु, जब तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कहाँ क्या रह गया, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो। तो अभी एक चीज़ मुझे बार बार गुरुजी के बताने, दोबारा सत्संग में उन्होंने मुझे बताया कहाँ पर क्या रखा है, पैसे बंधे हुए रखे हैं, वो मैंने सोचा है कि मैं जो इशारा है वो मैं उसे करूं। दूसरा, बाबा ब्लैक मैजिक में ऐसा आ रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने, कोई तुम्हारे नोन में, फैमिली मेम्बर ने, किसी में तुम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ जिस वजह से तुम इतने परेशान हो। गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही कि कौन है, मतलब मेरे समझने में थोड़ी सी, मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इर्द गिर्द और हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिन पे मैं ऐसा, मतलब उनके बारे में मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती कि वो कुछ करें, क्योंकि गुरुजी हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। वो हम उनसे, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे रहने सहने के मामले हो, पहनने खाने पीने किसी भी चीज़ के मामले, हम उनसे कम ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर भी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करें मुझे नहीं समझ में आता, और मुझे कई बार उन पर लगता भी नहीं है। पर मैंने गुरुजी से अरदास की, प्लीज़ आप जैसे और संगत को उनको सपनों में दिखाते हैं या सब ड्रीम्स आते हैं कि उनका कौन वो अपना है जो उनके साथ ही सब करता है, प्लीज़ आप मुझे वैसा कीजिए ताकि मैं मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स को शक की निगाहों से ना देखूं और मेरे मन में उनके लिए कोई बुरे ख्यालात ना आए। प्लीज़ गुरुजी आप मेरी हेल्प कीजिए। अभी भी बहुत नेगेटिविटी है और इतनी नेगेटिविटी के कारण मैं बहुत बार गुरुजी से नहीं जुड़ पाती हूँ, उन पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। हमेशा ये डाउट रहता है कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, दूसरी संगत के साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा, मगर फिर भी गुरुजी चाहते ना चाहते मेरी बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। पिछली बार भी मैसेजेस आ रहे थे अभी कुछ दिन पहले भी कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है और मैंने उसे काट दिया है, उसे बचा लिया है। और ऐसा भी हुआ, वो खेलते खेलते गिरा और उसको बहुत मामूली चोट आई और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, क्या पता कौन सी मुसीबत आपने छोटे में काटी है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ऐसी मॉर्निंग में मैं सत्संग सुन रही थी, जब गुरुजी मैंने एक दो आंटियों के सत्संग सुने जो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में इतनी परेशान हैं, कुछ अपने हस्बैंड से कि वो उनका केयर नहीं करते, उनसे मारपीट करते हैं, ढंग से बात नहीं करते, कुछ अपने इन लॉज से कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और कुछ उनके बच्चे नहीं हैं, इस तरीके की परेशानी से। तो मुझे उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि वाकई गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है कि आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे इन लॉज दी जिन्होंने मुझे कभी इस तरीके से परेशान नहीं किया, इतने अच्छे हस्बैंड दिए जो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, बच्चे दिए, बच्चों की परेशानी नहीं होने दी। मतलब जैसे दुनिया में लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपने मेरी ज़िंदगी में दी नहीं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे तो बहुत सबकी ज़िंदगी में थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम चलती ही है, बट जब मैं सोचती हूँ, उनकी सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है कि इन सिचुएशंस में मुझे कभी आने ही नहीं दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही बोलूँगी गुरुजी, आप अभी हमारे ऑफिस में कुछ चल रहा है सैलरी रिडक्शन का, लोगों को हटाने का लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हम काफ़ी लोगों की नौकरी पे खतरा है। गुरुजी बस मेरी आपसे यही अरदास है, आप किसी भी
जनधन का नुकसान मत होने देना। सब अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, घर चला रहे हैं गुरुजी। कमाने वाले अपना कमा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। बस मेरी गुरुजी आपसे यही अरदास है, आप सबका भला करना, किसी का नुकसान ना हो, किसी का भी अपना जो घर चल रहा है वो ख़राब ना हो, कुछ डिस्टर्ब ना हो गुरुजी। जो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिस में, आप हमारे तो एक तरफ सिर्फ आप ही हैं गुरुजी, ना हमारे कोई अप्रोच है ना कुछ है गुरुजी। आप सिर्फ आप ही हो जो हमारा मुकदमा लड़ सकते हो और सब चीज़ें देख सकते हो गुरुजी, और वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करे। बस गुरुजी हमारी तरफ आप है, ये मुद्दा मैं आपके हाथों रखती हूँ। जिस तरीके से आप सार संगत का उद्धार करते हैं, हमारा भी कीजिएगा। हमारे ऑफिस के जिन सब लोगों के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है, इनका सबका विषय मैं आपके हाथ रखती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ गुरुजी आप ज़रूर देखेंगे। और इसी तरीके से मैं मेरे सत्संग को विराम दूंगी। संगत जी, मैंने बताया नहीं, शुरुआत में मिस हो गया। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से हूँ। फ़िलहाल मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट मैं गुरुजी का बस शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने मेरे शहर का नाम बताया। और गुरुजी, मैं मेरे सत्संग को विराम दूँगी। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखेगा, साथ संगत का कल्याण कीजिएगा, मेरे परिवार पे हर तरीके की बुरी बलाओं, बुरी मैजिक, ब्लैक मैजिक सबसे छुटकारा दीजिएगा, और अपनी अरण शरण में हमेशा हमें रखिएगा गुरुजी। आपसे ज़्यादा हमारा ख्याल कोई नहीं रख सकता गुरुजी, इसीलिए आप हमेशा हमें अपने आस पास रखिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरु। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे शुक्राना का मतलब नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब, मैं समझती थी कि शुक्राना का मतलब सिर्फ शुक्राना करना होता है, लेकिन जब गुरु जी के बार बार मैसेज आए कि शुक्राना कर, तो मुझे मेरी मम्मी से पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो मैं शुरू से शुरुआत कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते समय मुझसे जो गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जर्नी फरवरी सन 2023 से शुरू हुई। मेरी बेटी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और गूगल में मुझे गुरु जी का स्वरूप साफ दिखाया। तब मैंने गुरु जी के पहली बार दर्शन किए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर गुरु जी का स्वरूप साफ। उसमें जब मैंने गुरु जी को देखा तो एक अलग ही नूर गुरु जी के चेहरे पे झलक रहा था। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन और उसकी बेटी, हमने गुरु जी के दर्शन हमने 31 जुलाई महासमाधि दिवस वाले दिन हमने गुरु जी के दर्शन किए। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारी जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। गुरु जी ने अचानक ही हमारी सारी व्यवस्था कराई। मेरी बहन की जो सास है वो चंडीगढ़ जा रही थी, तो उनके साथ उनकी कार में हम सब उनके साथ ही चले गए। और फिर उसके बाद दूसरे दिन हम वहाँ पर दिल्ली पहुँच गए और वहाँ पे जा कर के हमने गुरु जी के बड़े मंदिर में गुरु जी के बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर हमने दर्शन किए। और उसके बाद पहली बार हमें सत्संग जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी वो पहली बार सत्संग में ही हमें संगत जी हमें पहली बार ही गुरु जी के स्वरूप साफ हमको मिला। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गुरु जी का स्वरूप साफ था। वो स्वरूप साफ हम अपने घर में लेकर के हमने अपने घर में गुरु जी का स्वरूप साफ लगाया। और इसके बाद हमें गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिली है। एक बार क्या हुआ संगत जी कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि इतने दिन हो गए कि मुझे चिड़िया नहीं दिखाई थी। मैं चिड़िया के दर्शन करना चाहती थी, क्योंकि संगत जी मुझे चिड़िया बहुत पसंद है। तो आजकल वैसे भी बहुत ही कम चिड़िया दिखाई देती है। तो मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि मैं घर से अपने बाहर बालकनी में आई, तो मुझे वहाँ पे बहुत ही प्यारी सामने चिड़िया बैठी दिखाई दी। मैं देख कर के हैरान रह गई कि अरे, मैं तो अपने मन में भी ये बात सोच रही थी, और गुरु जी देखो कैसे फट वो जान गए और उन्होंने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। वो जो चिड़िया थी वो सामने बैठी थी, उसके बाद वो उठ के वो जो उड़ती हुई आई और आकर के सामने तार पर बैठ गई। मैंने बहुत ही
प्यार से मतलब चिड़िया को देखा, बहुत ही प्यारी लग रही थी चिड़िया। फिर उसके बाद मुझे तितली दर्शन भी हुए। तब हमें पता चला कि गुरुजी भी तितली रूप में अपने दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही कई बारी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और हमें सत्संग में जाने के मौके भी प्राप्त हुए। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। गुरुजी ने हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा की है कि हम सत्संग में, वह आप खुद हमें सत्संग में मत्था टिकवाते हैं। और फिर उसके बाद मैं, मेरी मम्मी, मेरी बेटी, मेरी बहन और उसकी बेटी नए साल वाले दिन, जबकि आज तक कभी भी नए साल वाले दिन हम कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गए। हम अपने गुरुद्वारे जाते थे, वहाँ मत्था टेकते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम 23 दिसंबर को हम लोग दिल्ली गए। फिर वहाँ पर 1 तारीख को हम लोगों ने बड़े मंदिर में गुरुजी के बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद एक बारी क्या हुआ कि मैंने जोत जगाई, गुरुजी के स्वरूप साहब के आगे जोत जगा करके मत्था टेका। फिर उसके बाद जब मैं बाहर जाने लगी तो वो जोत बुझ गई। फिर मैंने अपने मन में सोचा, बस मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ। जब वो जोत जगती है तो थोड़ी बहुत देर तक तो जगती है, तो वो तुरंत मतलब ज़्यादा देर तो जगी नहीं जो। तो फिर उसके बाद अभी मैं ये सोच रही थी कि फिर मैं बाहर आई, मैं काम करने लगी। फिर उसके बाद जब मैं अंदर आई तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरी बाहर काम कर रही थी, तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी ये क्या जोत आपने जगाई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बाहर काम कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी प्यारी और इतनी बड़ी जोत जग रही थी, मैं बता नहीं सकती कि ये चमत्कार सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं। वो वाकई में सच्चे पातशाह हैं, सद्गुरु हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनके मैंने दर्शन किए। ऐसे ही बहुत से सत्संग हैं, वो पल पल हमारी बातों को जानते हैं, हमारे साथ होते हैं। और संगत जी, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वही बात है ना संगत जी कि हमने जो कर्म किए होते हैं उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। लेकिन थोड़े बहुत जो हम लोगों की जो गंदे कर्म होते हैं वो तो खुद गुरुजी काट देते हैं, और थोड़े बहुत हमें खुद अपने झेलने पड़ते हैं। इस प्रॉब्लम का हल भी गुरुजी ही निकालेंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन तब तक तो हमें सब्र करना है। और मैं जानती हूँ कि हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं, क्योंकि पल पल वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे दिल की सुनते हैं। हम क्या चाहते, क्या नहीं चाहते हैं, वो सब जानते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से गुरुजी हमारा साथ देते हैं, हमारे पल पल की जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, वो सब पर अपनी मेहर करेंगे, सबकी रक्षा करते हैं और वह सबको खुशियाँ देंगे। बस मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सब अच्छे से रहें, सबके साथ अच्छा हो, सब अच्छा काम करें, सारी जगह गुरुजी महाराज अपनी खुशियाँ दें, सब लोग अपने घर में राजी खुशी रहें, सब ठीक ठाक रहें। बस यही मेरी गुरुजी से अरदास, यही मेरी प्रार्थना है। संगत जी, मुझसे जो कोई भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने पहली बार अपना सत्संग शेयर किया है, मेरी गलती भूल चूक क्षमा कीजिएगा। गुरुजी हमेशा हमें अपनी शरण में रखें, अपने चरणों में रखें, सबको अपने दर्शन कराएं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी महाराज सब पे मेहर करें, सबके चेहरों पर खुशियाँ लाएं। गुरुजी महाराज सब पे मेहर करें। सद्गुरु जी महाराज हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सोने हैं, बहुत ही मनमोहने हैं, क्योंकि वो आप रब हैं, आप सच्चे पातशाह, आप सद्गुरु महाराज हैं। मेरा तो उन पर बहुत विश्वास है। ऐसे ही सब अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखें। एक दिन हम सब अपनी प्रॉब्लम से निजात पाएंगे, सफल होंगे हम लोग। सच्चे पातशाह महाराज सबको खुशियाँ दे, सब पर मेहर करें, बस यही मेरी अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी 7वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग है, क्षमा करना संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं गुरुजी से कब जुड़ी ये मुझे खुद ही नहीं पता लगा।
मेरे अंकल जी के दोस्त के यहाँ बहुत पहले एक सत्संग था गुरुजी का, मैं वहाँ गई, बट वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैं जिस जगह काम करती थी, वहाँ एक बच्चे की मम्मी आई जो गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोवर है। उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया जो मैंने अपने पर्स में भी रखा, बट तब भी मैं कुछ समझ नहीं पाई। बात आई और गई हो गई। उसके बाद मैं अपनी एक और दोस्त के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, बस लेकिन गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया, बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे 15 साल हो गए थे काम करते हुए। उस जगह से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। कुछ दोस्तों पे जिन पे मैंने विश्वास किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि बात सेल्फ रिस्पेक्ट और नौकरी छोड़ने पर आ गई कि किसे चुनो। गुरुजी ने मेरा यहाँ साथ दिया। गुरुजी ने मुझे तभी चुन लिया था जब मैं पहली बार सत्संग पे गई थी। गुरुजी को पता था इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, जो आज तक नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ेंगे। मुझे उस दलदल से गुरुजी ने निकाला। जिस दिन मैं वहाँ से अपने काम वाली जगह से वापस आ रही थी, मुझे मेरी कैब में तितली के रूप में गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी ने कहा, चल बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। गुरुजी के सहारे मैं घर आ गई। उसके बाद जहाँ पे आप 15 साल काम करते हो, उस वर्क प्लेस को भूलना, वहाँ के लोगों को भूलना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं रोती बिलखती, बस गुरुजी के सामने बैठ के रोती रहती, ये सोचती रहती कि गुरुजी मैं इन चीज़ों से कैसे निकलूँगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे निकाला। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में एक स्वप्न दिखाया कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया। उसने कहा, गुरुजी चाहते हैं कि तू सत्संग कर। मैंने अकेले ही एक छोटा सा सत्संग किया। चाय प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, कड़ा प्रसाद बनाया। जिस दिन मैंने ये सत्संग किया, उस सत्संग के बाद मेरा घर फूलों से महक रहा था। मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी सपनों में आए, कभी तितली स्वरूप में, कभी कैसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मुझे सपना आया कि मुझे बहुत ज़्यादा खून की उल्टी हुई, और खून की उल्टी होते ही वहाँ मुझे गुरुजी के तीनों स्वरूप दिखाई दिए। मैंने अपने दोस्त को बताया। उसने कहा, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी से ऐसी जुड़ी हूँ कि बस अब तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ही सहारा हैं, गुरुजी ही पार लगाएंगे। नौकरी ढूंढ रही हूँ, ऐसा नहीं है गुरुजी ने नौकरी नहीं दी। गुरुजी ने 2-3 जगह मेरा अपॉइंटमेंट कराया, बट मेरे को वो समझ में नहीं आया, वहाँ मुझे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई। शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं वहाँ पे काम ना करूँ, बट ये काम मांग रही है तो उन्होंने मुझे दिया। लेकिन वो चाहते थे कि मैं यहाँ काम ना करूँ, तो मुझे वो फील ही नहीं आया कि मैं वहाँ काम करूँ, क्योंकि गुरुजी कुछ मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चा, तू इस लायक नहीं, तू बहुत कुछ करने के लायक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी से ऐसी जुड़ी हूँ कि गुरुजी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा घर, परिवार, माहौल सब बदल गया है गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। विराम देने से पहले मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो गई हो तो माफ़ करिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे शुचि आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुचि, गुरु जी हमेशा मैसेज भेज रहे हैं कि कुड़िए जा ऐश कर। संगत जी, मैं ना जद गुरु जी ने मैंने अपने ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ चेंज आ गया ना
ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਬਟ ਕੱਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਲਦੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੋਂ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੋ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना संगत जी ਇਹ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मेरा नाम शुचि है ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਓ। ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, 5% ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 100% ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।